Okay, welcome back. स्वागत है आपका एक और बार। Just before we went for our break, we looked at 2 Peter chapter 3 verse 18. हम ब्रेक में जाने से पहले दूसरा पत्रस 3:18 की ओर हमने देखा था। So here it says that we need to grow in the grace and यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा में बढ़ना है what else? और And क्या? knowledge. और क्या? Yes, knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर में जो ज्ञान है उसमें। So it says here grow means increase. यहाँ पर बढ़ना मतलब Increase. बढ़ना। Okay. To grow. What does it mean to grow? Grow. बढ़ना। Okay. What is it? Okay, grow means increase, and in the grace, your grace is talking about character, virtue. और यहाँ पर जो है बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, और कृपा जो है वो चरित्र में, अपने चरित्र में बढ़ना उसको कहा जाता है। Now, grace in the New Testament नए नियम में कृपा means divine enablement और दिव्य एनेबलमेंट या दिव्य रीति से बढ़ना, divine empowerment, दिव्य रीति से सामर्थ्य में बढ़ना, and also talks about character. और वो भी नहीं, अपने चरित्र और गुणों के विषय में कहते हैं। So grace means different things in the New Testament in the context. और उस अवस्था के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार कृपा का अलग अलग अर्थ है In the New Testament. नए नियम में। So it says here, grow in the grace or grow, increase in the character and the virtue. और वहां पर कहा गया है इस वचन के अनुसार कि अपने गुणों में, चरित्र में, कृपा में, परमेश्वर में बढ़े। In the knowledge, that means in the understanding, in the knowing of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर को जानने के ज्ञान के विषय में बढ़ना। So this knowledge is not just intellectual knowledge. ये जो है सिर्फ जो है बौद्धिक रीति का अंडरस्टैंड, वो मतलब वो ज्ञान नहीं है, But it is a knowledge where, it becomes more personal and it translates into a more personal relationship with you, with God. और बौद्धिक रीति से नहीं, ज्यादातर ये जो है निजी ज्ञान के विषय में कहा गया है, उसमें बढ़ना। So for example, you can study about chemistry, physics, maths. उदाहरण से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के बारे में आप जब सीखते हैं, Or science. या फिर विज्ञान के विषय में, But it does not have a personal relationship with you, right? लेकिन उस कोर्स का जो है, सब्जेक्ट का जो है, आपके साथ एक निजी रिश्ता नहीं है। Unless you make it into a personal relationship with your daily life. और जब तक आप अपने प्रतिदिन के विषय में उसको एक निजी रिश्ते में लेके आते हैं। If you can just receive knowledge about science. और विज्ञान के विषय में हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। But if you apply that in your everyday life and context, your life can, the things that you do can become more meaningful. और अगर आप अपने दिनचर्या में उसको लागू करते हैं तो हमारा जीवन और अर्थमय हो जाता है। For example, उदाहरण से, my sister, younger sister, मैम की छोटी बहन, she loves to read a lot. उनका स्वभाव है कि ज्यादा किताब पढ़े। And she likes food a lot. और उनको खाना भी बहुत पसंद है। But she eats very limited and very thin. Nobody when they look at her will not think that she loves food. और वो कम खाती है और वो पतली दिखती है, कोई भी देखकर नहीं बोल पाएंगे कि ये इसको खाना के साथ प्रेम है। But when she is cooking food, वो लेकिन जब खाना बनाती है, she uses a lot of chemistry and physics and maths in her cooking. और उनके पकाने के समय पर उसमें ज्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का इस्तेमाल करती है। So for example, if she uses lime, उदाहरण से नींबू को वो इस्तेमाल करेगी। she will tell my mother what is this lime, what acid it has, what this acid will do to the meat and to the marination, and she'll give her a whole lecture on that. और जब खाना पकाने के वक्त में नींबू लेती है तो नींबू के अंदर क्या
नींबू में एक एसिड रहता है उसके अंदर क्या केमिकलिक एसिड है, उसका प्रयोजन क्या है, उस वो मांस के अंदर वो क्या करता है, उसको मैरिनेट करने से क्या करता है, ये सारे विषय में एक बड़ा सा ज्ञान पाठ सिखा देगी। or even if she says about the timing of cooking the food, she will give you the math for it. और अगर वो पकवान बनने का जो समय लगता है उसके अंदर भी वो उसका गणित के विषय में बता देगी। Or when she's talking about something about the universe, she will bring about science and physics and maths and she'll explain so beautifully. और अगर इस संसार के विषय में अगर बोल रही है तो उसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स को लेकर इतना सुंदर तरीके से बताएगी। Even gardening, how much water to put, what is the solution, what is the fertilizer, what is there in the fertilizer, every lecture she'll give my mother. और मेरी माता को जो है अगर वो वाटिका देखने के विषय में हो, उसमें भी कौन सा कितना प्रतिशत पानी डालना है, उसमें कौन सा खाद डालना है, उस खाद के अंदर क्या है, ये सब एक लेक्चर के रूप में देगी माँ को। And I used to think, and she said, Ma, I studied this in school. Our teacher taught us that. And I was like, wow, so wonderful to apply the knowledge in your practical everyday life. और वो जब मैम से बोलती है कि मेरे स्कूल में ऐसे मैंने पढ़ा, इस प्रकार से उसको प्रयोजन करना है, तो मैं सोचती थी कितना अच्छा है कि दिनचर्या में एक रीति को इस्तेमाल में लाना। और मैं सोचती थी अरे मैंने भी सेम थिंग पढ़ा पर कुछ अप्लाई नहीं होता है। I used to think I have studied the same but nothing gets applied. But it's so nice to hear the application of what we studied in school so many years back. और कई सालों पहले जो स्कूल में पढ़े थे उसका प्रयोजन में लाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। So when we have personal devotion time with God, हमारे पास एक निजी परमेश्वर के साथ जब भक्ति का समय होता है, when we read the Bible, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, it's not just like a ritual. वो एक तौर तरीके के समान नहीं है। It's not just for us to know about God. वो सिर्फ परमेश्वर को जानकारी प्राप्त करने में नहीं है, but that knowing translates into an understanding and experience about God. और हमारा जानकारी जो है वो परमेश्वर को निजी तरीके से जानने में सहायक बन जाता है, बदल जाता है। For example, the blind man Bartimaeus, और बर्तिमेय करके जो अंधा व्यक्ति था, or about that woman who had that was bleeding for so many years, और वो जो लहू का परेशानी था वो स्त्री के बारे में जो सालों से था उसको, or Jairus who came crying and asking God to come and Jesus to come and heal his daughter who was sick. जेरियस जो यीशु के पास आके गिड़गिड़ाते हैं कि आकर मेरी बेटी को चंगा कर दे। Or all the others who came to Jesus, और वो सारे लोग जो यीशु के पास आए थे, they knew Jesus. वो यीशु को जानते थे, In a sense, they had heard about the miracles he had done. और उनने यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए हैं उसके बारे में उनने सुना है। They would have heard that people saying he's the Messiah. और उन लोगों ने सुना होगा कि यीशु मसीह है। But it all translated for them not just knowledge. Oh, he's some godly person. He's some miracle working person. Okay, fine. और उन लोग के लिए सिर्फ ऐसा दर्शाया होगा कि सही है, वो चमत्कार करने वाला पुरुष है, वो एक चमत्कारी व्यक्ति है। But it didn't. But for them, it personally translated that knowing, that knowledge became an understanding, an experience for them to go and ask Jesus to heal them. और उनका जो वो ज्ञान था, जानकारी था, उनके लिए एक कार्य का प्रणाली का बन गया, इसलिए ताकि वो यीशु के पास जाकर उनकी कार्यों को प्राप्त कर सके। And it became like a personal relationship with them and Jesus. और वो एक निजी यीशु और उनके बीच में एक रिश्ता बन गया। Even for blind man Bartimaeus, बर्तिमिस जो अंधा था, he did not see Jesus because he was blind. उसने यीशु को नहीं देखा क्योंकि वो अंधा था। He did not see the miracles that Jesus did. और उसने यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया उसको भी नहीं देखा। But he just heard about Jesus. लेकिन उसने सिर्फ जो है
यीशु मसीह के बारे में सुना There was just a little knowledge he received about Jesus, और वो उसके अंदर छोटा सा एक ज्ञान था जो प्राप्त उसने किया था, but that became an understanding about who Jesus is. और वो जो है उसके अंदर एक समझ बन गया कि यीशु मसीह कौन है, An understanding that, hey, this Jesus is the only one who can heal me and turn my situation around. और ये समझ कि यीशु मसीह ही है उसकी परिस्थिति को जो बदल सकता है। And that is why he was trying to get to Jesus and nobody was helping him. और इसी कारणवश वो यीशु के पास जाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, And people were getting angry with him. और लोग जो है उसके साथ क्रोधित हो रहे थे, And they had told him, hey, you blind man, you beggar, you stand here in this place quietly. और उनने कहा कि ये तू अंधा व्यक्ति जो भीख मंगा है, तू यहाँ पर शांत खड़े रहे। Many people had known who Jesus was. कई लोग जानते थे कि यीशु कौन है, Many people had seen Jesus do miracles. और कई लोगों ने देखा है कि चमत्कार यीशु करता है, But many of them, it did not translate as an understanding. उन लोगों ने उनके उसको जो है अपने समझ की ओर नहीं बदला। If they had an understanding, they would have said, hey, this is a blind man. We can take him to Jesus. You know, he can see and his life will change. He does not have to become a beggar. We can do that. और उनके अंदर अगर ये प्रकार का समझ आ गया होता तो वो लोग देखते कि यहाँ पर एक अंधा है, उसको यीशु के पास ले जाते, आगे इसको चंगाई मिल जाएगा और इसको आगे आकर भीख मांगने की जरूरत नहीं But पड़ेगा। for Bartimaeus, there was not just knowledge, it was an understanding. लेकिन बार्तिमियस के जीवन में वो एक सिर्फ समझ नहीं था, वो एक ज्ञान भी था। He finally screamed out and, you know, Jesus heard him and he received his healing. और अंततः उसने जोर से आवाज पुकारा और जोर से पुकारा और यीशु ने सुना और उसको चंगाई मिला। And that's why Jesus says, you know, you're healed because of your faith. और इसीलिए यीशु कहता है तेरे विश्वास के कारण तुझे चंगाई मिला है। So faith does not come by just knowing who God is, सिर्फ परमेश्वर कौन है करके जानने से विश्वास नहीं आता है, but faith comes when it goes into a deeper understanding of who और Jesus and विश्वास what he तब can do आता है जब यीशु कौन है करके हम गहरे समझ की ओर आ जाते हैं and what he can do. और वो क्या कर सकता है। So if you look at your own lives, आप अगर अपने निजी जीवन में देखेंगे how you know, what you do when you face problems and challenges, और जब चुनौतियां और परेशानियों को आप जब देखेंगे, whether you sit and you moan and you cry and you feel sad about yourself, क्या आप बैठे रहते हैं और उदास होते हैं, रोते रहते हैं अपनी परिस्थिति के विषय में, and you think, oh, poor me, everything is happening only to me, और कभी कभी सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है करके, or when you get very irritated and angry with others and blame others because of what is happening to you, आप दूसरों के प्रति घृणामय हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, and then you stop reading the Bible and stop praying, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना रोक देते हैं, प्रार्थना करना रोक देते हैं, you stop going to fellowship and church, और आप जो है संगति में जाना या कलीसिया में जाने के लिए रोक देते हैं, at those times it really shows how much you know God. और तब हम जान जाते हैं कि कितना हम परमेश्वर को जानते हैं। Even when you go through problems, when you pray, your praying also shows how much you know God. और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी हम समझ जाते हैं कि हम प्रभु को कितना जानते हैं। So when you go through a problem, you know, are you going to pray with saying, God, this is my problem, and crying, I don't know what is happening, you're not doing anything, blah 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 blah, we can go on. और हम कह सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, इस परिस्थिति से मैं हो रहा हूँ, अब मैं नहीं जानता कितना आप जानते हैं, ये सब ऐसे बड़बड़ा सकते हैं। But if we come to a place where we know God and it translates into an understanding of who God is, हम एक ऐसी स्थान में पहुंच जाते हैं कि हम जान जाते हैं कि प्रभु कौन है और उसके बारे में एक समझ की ओर हम बदल जाते हैं। we can tell God, God, I'm going through this, हम कह सकते हैं कि प्रभु हम ऐसे अवस्था से गुजर रहे हैं, but I know you can do this for me. और मैं जानता हूं कि आप ये ऐसा एक काम कर सकते हो, And this is your promise for this problem. और इस परेशानी के प्रति आपका एक वादा है, Or when you did this for this person, when you did this for David or Joseph, you can do it for me. और आपने इस ऐसे परिस्थितियों में दाऊद के लिए, यूसुफ के लिए किया था, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हो। So that is translating into a deeper understanding and a faith. और वो जो है हमारे परमेश्वर के प्रति एक गहरा समझ और विश्वास की ओर हमें ले जा रहा है।
And when you stand on that faith, you see God work in a और जब वो mighty way. विश्वास पर हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर को कार्य करता हुआ हम देखते हैं। And that comes through in a personal relationship with God. You और- become very personal in your relationship with God. और वो जो है हमें एक परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ते की ओर लेकर आ जाता है। You know, when I went into Bible college, मैं जब बाइबल कॉलेज में गई I was very young, just straight out of school, 12th grade. और 12वीं कक्षा को खत्म करने के बाद मैं गई थी, So I was very dependent upon people because I was very dependent on my parents. और मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर निर्भर थी और मैं अपने माता पिताओं के ऊपर भी निर्भर थी। So because I was so dependent on my parents, when I went to Bible college, you know, it was in a different state in India, and I stayed in a hostel. I was very dependent on the senior girls. और मैं माता पिताओं के ऊपर बहुत निर्भर थी। इस कारण से मैं जब कॉलेज गई, दूसरे जगह पर गई अपना जगह छोड़कर, तो मेरे सीनियर दीदियां थे, उनके ऊपर मैं निर्भर थी। And I realized that I was very dependent on one girl. और मैं जानती थी कि एक लड़की के ऊपर मैं बहुत ज्यादा निर्भर थी। But you know, she would always get me to do all her work for her. और वो उसके लिए जो कुछ काम था, उसका जो पूरा काम था, मेरे से करवाती थी। And I used to do it. और मैं करती थी। But I realized that when I was going through a problem, she would never be there to help me. और मैं समझ जाती थी कि जब मैं कोई परेशानी के द्वारा गुजर रही हूँ तो वो वहां पर नहीं है। And once it happened like that. और ऐसा एक दिन हुआ। And I was too disappointed and too sad. और मैं बहुत दुखित हो गई थी, निराश हो गई थी। And then, you know, I used to spend time alone with God. और मैं तब परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना शुरू किया। My Bible college was on a mountain top. और मेरा जिस बाइबल कॉलेज में थी वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित था। So I used to go right up to the mountain where the fence was of our college. और जो पहाड़ी एरिया हमारा कॉलेज था, उसका जो आखिरी भाग था, उधर तक मैं जाती थी। There was a bench there. वहां पर एक कुर्सी था। And it overlooked the city. Okay, we'll continue with our class. So I was saying that, you know, I used to go and sit on this bench in my Bible college that overlooked the city. और मैं ये बोल रही थी कि अपने बाइबल कॉलेज में जो है वहां पर वो बेंच में जाके बैठती थी और वो सिटी की ओर देखती थी। And I used to spend time with God. और मैं परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। Just sharing everything about my life with him. और सारी बातें जो है मेरे जीवन में उसको यीशु के साथ मैं बांटती थी। And that became a practice. वो जो है एक अभ्यास बन गया। Ever since after that, I never used to share anything with anyone else. और उसके बाद जिस दिन से मैं यीशु के साथ बांटना शुरू किया, उसके बाद मैं अपना कोई भी परेशानी किसी के साथ नहीं बांटती थी। Because all my answers, God used to either speak to me from his word, or he used to speak to me through his voice, or through creation, or through some sermon. और हमेशा जो है मेरे बातों का जो उत्तर है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा या किसी गाने के द्वारा या प्रकृति के द्वारा या किसी सुने हुए प्रचार के द्वारा मुझसे बातचीत किया करते थे। And all the answers that I was looking for life ever since, every answer I have found in the Bible. और जो कुछ जीवन के आवश्यकता को मैं खोजती थी वो सब मैंने वचन के अंदर से प्राप्त किया। So even now I don't share with anyone, not even my parents. I just go straight to God. और आज भी मैं किसी से वो परेशानी को बांटती नहीं हूँ, अपने माता पिताओं से भी नहीं, मैं सीधा परमेश्वर के साथ बातचीत करती हूँ। And God's word says it's better to trust in God than to trust in man. और Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखे, ना कि मनुष्य पर। This really built up my personal relationship with God. और ये जो है मेरा निजी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था उसको अच्छा किया। So our personal time of devotion with God helps us to grow and increase, you know, in our grow stronger spiritually. Sorry. और वो जो है हमें आत्मिक रीति से और बलशाली रीति से बढ़ने में सहायक बनता है। Now, just a small detour.
थोड़ा सा एक अपने नॉर्मल रीति से हट के चलेंगे। The Bible tells us that we are all spirit beings. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है आत्मिक प्राणी हैं। We are all spiritual beings. हम जो है आत्मिक प्राणी हैं। God is also a, परमेश्वर भी, yes, God is also a spirit being. परमेश्वर भी जो है आत्मिक प्राणी है। 1 Thessalonians 5:23 says पहला तस्सलोनियों 5:23 में कहा गया है that we are made up of spirit, soul and body. कि हमें प्राण, आत्मा और देह से बनाया गया है। So what is your soul made up of? आपकी आत्मा क्या चीजों से बनी हुई है? Your mind, your emotions and your will. और आपका दिमाग, भावना और इच्छा। So your soul is basically made up of your mind, emotions and your will. और आपकी इच्छा दिमाग और भावना के अनुसार बना हुआ है। Now your human spirit, your spirit is a hidden person. और आपका जो आत्मिक व्यक्ति है वो छिपा हुआ व्यक्ति है। Or the Bible says it's a real person. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सही, मतलब सही में जीवित एक आत्मा है। So who you are is who you are in your spirit being. और परमेश्वर का वचन कहता है तुम वो हो जो तुम आत्मा में हो। Your human spirit, can you just look at the, yeah. Your human spirit is a hidden person or the real person. और आपका आत्मिक व्यक्ति जो है छिपा व्यक्ति है या आत्मिक व्यक्ति है। So it is who you really are, who is who you are in your spirit man or your spirit being. और आप अपने आत्मा में आप वो व्यक्तित्व हैं जो आपके आत्मिक मनुष्य में है। Look at what 1 Peter chapter 3 verse 4 says. देखें कि पहला पत्रस 3:4 क्या कहता है। 1 Peter chapter 3 verse 4. Can everyone read that by yourselves, please? अपने आप में थोड़ा वो पढ़ लें। So here in this verse it talks about the hidden person. यहाँ पर एक छिपे हुए व्यक्ति के बारे में कहा गया है। It says the hidden person of the heart. और उसमें लिखा हुआ है कि हृदय का छिपा हुआ व्यक्ति। So the hidden person is basically who you is a spirit or the heart of the person. और वो छिपा हुआ व्यक्ति जो है उसके हृदय के अनुसार वाला एक व्यक्ति। Now in this verse the heart and the spirit are used synonymously. That means they are one and the same. और एक इसमें हृदय और आत्मा जो है एक पर्याय रीति से इस्तेमाल किया गया है। So in some places where you see heart, it's basically talking about the spirit man or the spirit of the person, or where you're talking about the spirit, it's talking about the heart of the person. और जहां कहीं भी हृदय के बारे में इस्तेमाल किया गया है वहां पर मनुष्य का अंदर की आत्मा के बारे में कहा गया है। जहां पर कभी कभी जहां पर आत्मा के विषय में कहा गया है उधर पर मनुष्य का हृदय के बारे में कहा गया है। So here we see that the spirit or the heart of the person is the inner person or the hidden person of a human being. और यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य का आत्मा जो है छिपा व्यक्तित्व है। Why does it say it's a hidden person? Because you can't see your heart, you can't see your spirit, right? क्यों वो छिपा हुआ है? क्योंकि आप अपने हृदय को और अपनी आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते हो। But your heart and your spirit is the real person, is really who you are. और हमारा हृदय और आत्मा एक वास्तविक व्यक्तित्व है। So here it's in this verse it says that the spirit or the heart has virtues or characteristics. और यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा छिपा व्यक्ति है उसके अंदर एक चरित्र है या गुण है। So suppose you are you're a very friendly person. उदाहरण ले लें कि आप बहुत ही
दोस्ती बनाने वाले व्यक्ति हो, you're very courageous or very strong, और आप पूरे बहुत ही धैर्यशाली और धीरज को रखने वाले व्यक्ति हो, or you're a person who never gives up easily, और वो व्यक्ति हो आप जो जल्दी हार नहीं मानते हो, or you're a person who gives up easily, या वो व्यक्ति हो जो जल्दी हार मान जाते हो, or you're a person who's not very courageous, very soft hearted. या फिर आपके अंदर धीरज नहीं है, आप निर्मल हृदय के साथ वाले व्यक्ति हो, It's all of who you are in your spirit man. और आपके आत्मा व्यक्तित्व में कौन हो वो आप हो, And that translates or shown in your actions in the outside body. और वो चीज जो है, अंदरूनी चीज जो है आपके बाहरी शरीर में दिखता है. So who you are in your spirit and who you are in your heart is actually your true personality, which is reflected through your body, through your actions, और through your outer body. आपके हृदय के अंदर आप क्या हो वो आपके शरीर के अंदर से दिखता है. So here it says that your hidden person, which is your spirit and your heart, यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो वो छिपा व्यक्ति जो आपका हृदय और आत्मा है, it has characteristic traits. और उसके पास जो है एक चरित्र का जो लक्षण है. So tell your neighbor that your spirit has characteristic traits. और आप अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से बोलें कि आपके अंदर जो है एक चरित्र का लक्षण है. Not under, in your spirit. आत्मा में, आत्मा में, स्पिरिट में नहीं, आत्मा में. So please say in your spirit man has characteristics. और कहें कि आपके स्पिरिट मैन, राइट, आत्मिक मनुष्य में एक चरित्र है. And what is the characteristics of your spirit man is translated or seen in your outward man. और जो आपके चरित्र के, आत्मिक मनुष्य के चरित्र में या गुणों में दिखा जा सकता है, वो जो है आपके बाहरी शरीर में दिखता है. And these are expressed through your soul and your body. और ये चीजें जो है आपकी आत्मा और शरीर के, देह के द्वारा दिखता है. And is a true personality of that person. और वो एक वास्तविकता है उस व्यक्ति का. So here in this verse, in 1 Peter chapter 3 verse 4, what are the two characteristics of a spirit being? और यहाँ पर पहला पत्रस 3:4 के हिसाब से दो वो क्या बात है जो एक आत्मिक व्यक्ति का है. What are the characteristics of a spirit being here in 1 Peter chapter 3 verse 4? पहला पत्रस 3:4 के हिसाब से एक आत्मिक व्यक्ति का दो चरित्र क्या है? Yes, a gentle and a quiet spirit. एक शांत और निर्मल आत्मा. But do all of us have a gentle and a quiet spirit? क्या हम सब में एक शांत और निर्मल आत्मा है? No, some of us don't have a gentle and a quiet spirit. कुछ लोगों में वो शांत और निर्मल आत्मा नहीं है. That's why we are not seen as gentle and quiet people. इसीलिए हमको जो है एक निर्मल और शांत व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं. But here the Bible says that when we are gentle and quiet in our spirit, it's great worth in God's sight. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम शांत और निर्मल आत्मा के व्यक्ति बन जाते हैं तो परमेश्वर की नजर में एक बहुमूल्य बन जाते हैं. And these virtues are precious and delightful in God's eyes. और ये गुण जो है परमेश्वर की नजर में बहुत ही प्रशंसनीय हो जाता है. And these are good characteristics that we need to have. और ये वो गुण है जो हमारे अंदर होना चाहिए. Yes, our outward man is wasting away. और हमारा बाहरी शरीर जो है खत्म हो रहा है. We don't look how we were looking when we were children or when we are much younger. और जब हम बच्चे थे और बहुत ज्यादा जवान थे तब हम जैसे दिखते थे आज नहीं दिखते हैं. When you get older, you will not look like how you are now. और जब आप और बूढ़े हो जाएंगे तो हम वैसे नहीं दिखेंगे जैसे अभी दिखते हैं. You can look at your pictures and say, "Oh, this is how I was when I was this age." और आप हमारे चित्र को देख के, फोटो को देख के बोल सकते हैं हम ऐसे थे जब हम और
कम उम्र के थे, our outer man is fading away, और हमारा बाहर का शरीर जो है खत्म होता जा रहा है, but the characteristics that are there in our spirit being, और वो जो आत्मिक व्यक्ति में जो चरित्र है, they are incorruptible. That's what this verse says. और वो जो है किसी भी रीति से उसको नाशहीन है, It's incorruptible beauty. और वो जो है नाशहीन व्यक्तित्व है। So who you are in your spirit man, और वो जो आपके आत्मिक व्यक्तित्व में है, that is what is seen outside in your actions and your reactions and the way you behave. और वो दिखता है आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से आप स्वभाव में लाते हैं। So we learn in scripture that a born again human spirit और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि एक उद्धार पाए हुए, नया जीवन पाए हुआ एक व्यक्ति must be developed and nurtured. वो जो है और बढ़ना है और पोषित होना है, And we need to grow spiritually. और हमें आत्मिक रीति से भी बढ़ना है। The more you grow spiritually, जितना ज्यादा हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, you will see yourself moving in the things of the spirit. और हम देखेंगे कि अपने आप को परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हुए। Now, for example, उदाहरण से you have seen many people who say, I've accepted Jesus as my Lord and Savior. हम कई लोगों को सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, But you see them, they can be drinking, smoking, और हम देखते हैं कि वो लोग शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, they can be in love with somebody else who is not a believer, वो लोग जो है उस व्यक्ति के साथ प्रेम के रिश्ते में होते हैं जो विश्वासी नहीं होते हैं, they can be married but having an extramarital relationship, वो शादीशुदा हो सकते हैं कि लेकिन शादी के बाहर एक अवैध रिश्ता होगा, you can see them talking bad words, you can see them fighting, being greedy for money. और हम देख सकते हैं कि गलत तरीके के बातचीत बोलते, गंद बातें बोलते हैं, वो लोग पैसे के प्रति और लालची होते हैं और लड़ाकू होते हैं। So you think, hey, they have accepted Jesus, but it's not seen in their actions. और हम देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें यीशु मसीह को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन शरीर में वो दिखता नहीं है। Why? क्यों? Because yes, the inward heart or the spirit क्योंकि उसका जो अंदरूनी व्यक्तित्व है, हृदय है, is not being developed and nurtured into Christ likeness. और परमेश्वर के समान वो जो है पोषित और बढ़ा नहीं है। Paul says पौलुस कहता है that our carnal nature and our spirit man is always at war. और वो परमेश्वर पौलुस कहता है हमारा लोपी शरीर और आत्मिक व्यक्तित्व जो है हमेशा युद्ध में रहता है। Our spirit wants to obey God. परमेश्वर को हमारी आत्मिक व्यक्तित्व आज्ञाकारी बनकर रहना चाहता है। We want to do what God's word says. और वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर कहता है। But our flesh is drawing us towards the things of the world. लेकिन हमारा शरीर जो है दुनिया की ओर हमें खींच कर ले जाता है। And that is why Paul says, do not feed your carnal nature, feed your spirit man. और इसलिए कहता है, पौलुस कहता है कि अपने भोगी शरीर को खाना ना खिलाएं, अन्यथा आत्मिक शरीर को आत्मिक व्यक्तित्व को पोषित करें। So tell your neighbor, don't feed your carnal nature, you don't feed your flesh, feed your spirit man. और कहें अपने पड़ोसी से अपने शरीर की इच्छाओं को, लोभ को ना पोषित करें, अन्यथा आत्मिक व्यक्ति को पोषित करें। Tell your neighbor that. He's sleeping. So the more you keep, suppose this is your flesh, your desires of your flesh. उदाहरण से ये हमारा शारीरिक अभिलाषा है, And this is your spirit man. और ये जो है एक आत्मिक व्यक्तित्व है। The more you listen to your spirit and you keep doing what your spirit desires, the more it's growing. और जितना ज्यादा हम अपनी आत्मिक व्यक्ति जो Not आत्मिक, your body.
You said spirit. Okay, your body. तो जितना ज्यादा आप अपने शरीर की बातों को सुनेंगे और वो करेंगे, उतना ज्यादा आपका शारीरिक रीति से वृद्धि होगा। And the more it grows, the more your spirit man is decreased. और जितना ज्यादा आप वो शारीरिक रीति से को बढ़ाते हो, उतना ज्यादा आपका आत्मिक व्यक्तित्व नीचे हो जाएगा। The more you listen to your spirit and the things of God and obey the things of God, the spirit man is growing. और जितना ज्यादा आपका आत्मिक व्यक्तित्व जो है परमेश्वर को सुनेगा, उतना ज्यादा वो परमेश्वर में बढ़ेगा। And when this is growing, your flesh is being starved. और जब आपका आत्मिक व्यक्तित्व बढ़ता है, तो आपका शारीरिक अभिलाषा जो है वो भूखा पड़ जाता है। And when something is starving for a long time, what happens? और जब ज्यादा देर के लिए भूख के अवस्था में होता है, तो क्या होता है? It will die, yes. वो मर जाता है। So you will either you'll either kill your flesh or you'll kill your spirit. और दोनों में से एक हो सकता है, या कि आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मार डालोगे या आत्मिक व्यक्तित्व को मार डालोगे। So if you're feeding your spirit man, that is seen in your actions. और यदि आप आत्मिक व्यक्ति को पोषित कर रहे हो, तो आपके कार्य के द्वारा वो दिखता है। Yes, maybe you were smoking and drinking. हो सकता है कि आप धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे, You were talking lies using bad words. आप झूठ बोलते थे और गंद शब्दों को इस्तेमाल करते थे। You were very angry person, you used to just break out in your anger. और आप जड़े ही गुस्सैलु व्यक्ति थे और आप क्रोध में टूट पड़ते थे। And whenever you open your mouth, there's always you speak a lot of lies. और जब भी आप अपने मुंह को खोलते थे, झूठ ही बोलते थे। But now when your spirit man is growing, जब आपका आत्मिक व्यक्ति बढ़ रहा है, all of these things will grow dead. और ये शारीरिक चीजें जो है सब मर जाएंगे। But if you're not feeding your spirit man, लेकिन अगर आप आपके आत्मिक व्यक्ति को पोषण नहीं दे रहे हो, then all of the things of the flesh will be growing and you see you will not be able to overcome them. और जो है ये शारीरिक चीजें जो है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करने में तकलीफ होगा। And people will see your fruits and know who you really और are. आपके अंदर से उत्पन्न होती हुई फलों को देखकर वो लोग जान जाएंगे कि आप कौन हैं। So God is interested in the characteristics of your spirit man or your heart. और परमेश्वर उस पर रुचि रखता है ताकि आपके आत्मिक व्यक्ति के फल या फलों को या आपके हृदय को। It says here a gentle and a quiet spirit is precious in God's sight. और आपके अंदर जो निर्मल और शांत आत्मा है, उसमें परमेश्वर प्रसन्नित होता है। Can you imagine that? That means God is also interested, and he is very interested in our characteristic in us, in our spirit man. और हमारे आत्मिक व्यक्ति के अंदर जो चरित्र है, उसके विषय में परमेश्वर रुचि रखता है। So have a gentle and a quiet spirit because that is precious in his sight. आपके अंदर एक निर्मल और शांत आत्मा रखें, क्योंकि परमेश्वर वो उससे प्रसन्न होता है। Now the Bible draws a parallel between nurturing our physical body and nurturing our human body. और आत्मा जो है एक समापन रीति समानता रीति से एक चित्र दर्शाता है। It talks about how we can nurture our physical bodies and nurturing our human spirit. और हम उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मिकता में बढ़ सकते हैं और उसे पोषित कर सकते हैं। So look at Matthew chapter 4 verse 4 and 1 Peter chapter 2 verse 2. आपके नोट्स में जो दिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 और पहला पत्रस 2:2 को देखें। And सब लोग अपने आप पढ़ लीजिए please. Everyone can read it by yourself. अपने में होकर पढ़ें। So here we see that यहाँ पर हम देखते हैं the word of God परमेश्वर का वचन is compared to what? किस चीज के साथ तुलना किया गया है?
It's compared to food, which is milk and bread. वो आहार के साथ तुलना किया गया है दूध और रोटी। So what is it saying here? यहाँ पर वो क्या कहा गया है? It says just like we need natural food for us to grow physically, हमें जिस प्रकार से प्राकृतिक आहार की जरूरत है ताकि हम बढ़ सकें, in the same way we need spiritual food, इसी प्रकार से हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। that is God's word, वो जो परमेश्वर का वचन है, to live and grow spiritually. और आत्मिक तरीके से रहने के लिए और बढ़ने के लिए। So some of you ask, why should I read God's word? आप में से कुछ पूछेंगे क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है? Why should I read God's word every day? क्यों मैं प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है? Just like we need to eat food every day, जिस प्रकार से हमें खाना हर दिन खाने की जरूरत है, breakfast, lunch, sometimes tea and dinner, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, कभी कभी चाय के साथ भी। my mother says in our house we have 4 meals. मैम की माता जी बोलती है कि हमारे घर में 4 समय का खाना है। Evening snacks also is a meal for us. और 4 बजे का जो स्नैक कहते हैं वो भी कभी कभी खाना जैसे हो जाता है। And she has to make snacks for us. और हर बार जो है मैम की माता जी उनके लिए स्नैक्स बनाती है। So 4 meals we have in a day. और 4 खाना होता है हमारे घर में। So just like we need food every day, जिस प्रकार से हमें हर दिन खाने की जरूरत होती है to keep us strong and healthy, ताकि हम मजबूत और तंदुरुस्त रहें, in the same way we need spiritual food. इसी प्रकार से आत्मिक आहार की जरूरत है। If we need to be strong and alive and to be able to live through life and the circumstances and the situations we face. और हमारे परिस्थितियों जो जिसके सामना हम करते हैं उस सारे चीजों से में जीवंत रहने के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है ताकि और ज्यादा हमें बल मिल सके। Now we'll come back to our lane. हम अपने रास्ते वापस आ जाते हैं। We will look at some practical things. हम जो है जो Practical things. जो अभ्यासमय चीजें हैं उसके विषय में देखेंगे that we can practice and we can do when we have our daily devotional time. जब हम दैनिक भक्ति को करते हैं उस समय हम उस चीजों को अपने अभ्यास में ला सकते हैं। So far if you were sleeping, it's okay. अभी तक अगर आप सो रहे थे ठीक है। So tell your neighbor, wake up now. अब आप अपने पड़ोसी से बोल रहे जाग जाएं। बाइबल कॉलेज आ जाओ। नंदी हिल से बाइबल कॉलेज आ जाओ। नंदी हिल को छोड़कर बाइबल कॉलेज की ओर वापस आ जाओ। And listen to the 6 practical ways of doing daily devotion. और जो अभ्यास में लाने वाली 6 बातें हैं उसको सुन लें। Okay, we're going to look at 6 practical things that we can do in your daily devotional time. और आपके दैनिक या प्रतिदिन की भक्ति के समय में इस्तेमाल में लाने वाली 6 अभ्यास वस्तुओं को देखेंगे। And if you do this, I'm sure you will spend more than 15 minutes with God. अगर आप ऐसा कर लें तो मैं आश्वस्त हूं कि आप 15 मिनट से ज्यादा आपके भक्ति समय को इस्तेमाल में ला सकते हैं। So when you spend time with God every day, जब आप हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, you can do these 6 things. और ये 6 कार्य को आप कर सकते हैं। Now these are not 6 commandments written in stone that you have to follow. और ये जो पत्थर पे लिखी हुई लकीर के समान 6 कल्पनाएं नहीं है। It's just something that is from the Bible and something that is practical which you can use. और ये जो है कुछ चीजें हैं बाइबल के परमेश्वर के वचन के अंदर से और जो हम लोग अभ्यास में ला सकते हैं। You can follow it in this order. You can change the order. You can do other things, whatever. ये The जो Spirit of God leads. ये जो सूची दिया हुआ उसके अनुसार हम प्रयोग में ला सकते हैं या किसी भी तरीके से हम इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। Or however the Spirit of God leads you, you can do that. और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देता है उस प्रकार से कर सकते हो। But do what you feel comfortable. और जिस प्रकार से आपको सुविधामय होता है उस तरीके से करें। But for people like me who like to follow a pattern, this helps. और मेरे जैसे व्यक्ति जो एक सूची को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं उसके लिए उन लोगों के लिए वो प्रयोजक है। So the first thing what you do when you start
your time with God, पहला चीज जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ इस्तेमाल में लाते हैं, your personal time with God, आपकी निजी समय, you can confess your sins to God. और आप अपने पाप को कबूल कर सकते हैं। We'll come back after the break and look at the others. हम ब्रेक में आएंगे और उसके बाद देखेंगे।